I hope I hope that whatever we have discussed till yesterday, that part is clear to you all. Okay. Hope that part is very much clear to you all. Okay. So now today we are going to discuss few more new concept. Okay. So let me share my PPT. So I'm discussing on that. Just wait. Let me open it. This is the content that we will be discussing today. So today we are going to discuss about video tag. Okay, audio tag, my dear student. Again, these tags need more logic, right? So you have to be very much cautious while using these tags. Okay, so today we will be using video tag, we will be using audio tag, and we will be discussing that how we are going to include YouTube links. ओके सपोज ऑडियो वीडियो तो अगर हमारे पास पहले से डाउनलोडेड है या फिर जो ऑडियो वीडियो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, it is available in our folder, so we can directly give the URL, we can directly give the source, that is the complete address of that video and audio. Or if that audio and video is not available on our folder, then we can give the direct link of YouTube's also. So how we are, suppose you want to share some of your ideas or something which is available on YouTube, so you want to just give the link of those 2 or 3 speeches or those through programs. If you are designing a website for your college, so if you want to give your principal speech which is already uploaded on your college YouTube channel, so if you want to include any YouTube videos in your web pages, it is very good trained in nowadays, right? So if you want to include that, so how we are going to include our YouTube videos links. Okay, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CSS. जैसे कल मैंने जो मेनूज यूज किया था उसमें मैंने स्टाइल शीट का यूज किया था, राइट? तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज आया कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट स्टाइल शीट. सो टुडे मैं थोड़ा सा पहले आपको CSS के बारे में बताऊंगी. CSS क्या होता है, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज CSS को हम लोग कब यूज करेंगे. एक्चुअली CSS स्टैंड्स फॉर, right, cascading style sheets. Cascading style sheet, it stands for cascading style sheets. तो इसको मैं डिस्कस करूंगी. And after that we are going to discuss about different types of CSS concepts available in HTML. Okay, so we are going to discuss, these are the major topics to be discussed today, and these are the 2 more slides which we will be discussing, and after that we will be seeing the program. So first let's start with the video tag. Okay, so how you are going to include any videos in your web page. So as my dear student, you have already executed the programs that how we are going to include images on our web pages. I hope everyone has executed that program, how to include images. I have discussed 2 types of options, right? One option was if that video is available to your फोल्डर, अगर वो वीडियो आपके फोल्डर में अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप उसको एज अ सोर्स उसके नेम को along with extension आप डाल सकते हैं. if it is not directly available to your folder, then we can directly give the link कि actually अगर वो फोल्डर में नहीं है तो वो कहाँ पे अवेलेबल है, तो हम उसको अपने लिंक्स को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? सो इन द सिमिलर वे देयर आर 2 ways टू अपलोड द वीडियोस. 2 तरीके से हम लोग वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं. okay, let me show you the program, then you will be able to understand. Let me show you the program. okay, so it's very simple, it's very simple. okay, but thing is that आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा जब भी आप इस वीडियो टैग को यूज करेंगे तो आपका जो ब्राउजर है इट शुड बी अपडेटेड वंस. योर ब्राउजर शुड बी द अपडेटेड वंस बिकॉज वीडियो ऑडियो ये सब जो है दीज आर द न्यू फीचर्स ऑफ HTML.
सो मे बी द ओल्डर वर्जन ऑफ योर ब्राउजर, आपका ब्राउजर जो ओल्डर वर्जन का होगा, हो सकता है वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करे, लेकिन हो सकता है कि अगर आपके पास अपडेटेड ब्राउजर है तो इट विल बी सपोर्टिंग दीज टू टैग्स, राइट। तो आपको एक बार देख लेना होगा, छोटा सा प्रोग्राम लिख के आप एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेना है कि वेदर योर वीडियो योर ब्राउजर इज सपोर्टिंग योर वीडियो और नॉट, राइट। तो हियर आई हैव escaped many of the tags because मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा है, हेड ये सब नहीं लिखा है, डायरेक्टली मैंने HTML लिखा और बॉडी से मैंने शुरू किया है, बिकॉज नाउ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल कि टाइटल टैग क्या करेगा, HTML टैग क्या करेगा। So it's, I don't think it's very necessary to include every tag everywhere, so I have simply written HTML tag, then I have started with this body tag, फिर मैंने body tag लिखा है, and there is a simple tag that is called video tag, there is a simple tag that is called वीडियो टैग, ठीक है, सिंपल टैग है वीडियो, VIDEO, वीडियो टैग, राइट। आप उस वीडियो टैग को लिखोगे, आप कितने स्क्रीन पे वीडियो को दिखाना चाहते हो, तो उस चीज को आप सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, that is width and height. This is the same attributes that we were using in our image tag, right? Image tag में भी हम लोग इस attribute का use कर रहे थे. In the similar way, inside this video tag we will be using the attributes that is called width. Okay, so I've given 320, you can give 500 cross 500 so that it will take more. Generally हम लोग ज्यादा बड़ा साइज नहीं देते बिकॉज हमारे वेब पेजेस पे और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, सो जनरली द वीडियोज एक ऑर्डर में अपीयर होता है और एट द बॉटम समवेयर, सो वी डोंट गिव अ वेरी लार्ज साइज ऑफ द वीडियोज। ओके, सो आप उसका हाइट एंड विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हो। देन हियर आई हैव यूज्ड अ वर्ड कंट्रोल्स। ओके, दिस इज अगेन यू कैन से एट्रीब्यूट ऑफ दिस वीडियो टैग। जब भी आप कोई वीडियो को प्ले करते हो तो जनरली आप देखते हो कि वहां पे कुछ बटन्स अपीयर होते हैं, पॉज, स्टॉप, स्टार्ट, प्ले, ऐसे बहुत सारे बटन्स आपको आपके वीडियोस पे दिखते हैं। तो जब तक आप कंट्रोल टैग यूज नहीं करोगे ना, तो वो वीडियोस में वो सारे कंट्रोल्स, वो सारे बटन्स जो इसके डिफॉल्ट फीचर्स हैं वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। फॉर दैट वी इंक्लूड दिस कंट्रोल्स अलोंग एज एन एट्रीब्यूट अलोंग विद दिस वीडियो टैग। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, इसके अंदर हमने यूज किया एक टैग सोर्स। क्या यूज किया मैंने? सोर्स, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर वीडियो, ये वीडियो कहाँ है। तो जैसे इमेज में आप SRC एट्रीब्यूट यूज करते थे, इन द सेम वे we will be using SRC and this is one video which is MP4 type। तो जनरली आपका वीडियो MP4 होना चाहिए, MP4, राइट। then only the latest browser supports this type of video। जैसे ये हमारा एक वीडियो है, वीडियो 1.mp4, इट इज अवेलेबल इन माय फोल्डर, ये मेरे फोल्डर में अवेलेबल है। आई कैन शो यू दिस सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि ये वीडियो कहाँ से आया। यू कैन सी देयर इज अ वीडियो ना mp4, आप इसका फाइल का नाम देख लो, इसका एक्सटेंशन देख लो, दिस इज mp4 फाइल। कैसा फाइल है ये? दिस इज mp4 फाइल and the name of the video is video1। so this video is located in the same folder where my another web pages are available, जहाँ पे मेरे बाकी वेब पेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोर्स डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप लिखा, टाइप हमारा किस टाइप का है? mp4 टाइप का हो सकता है, राइट। अगर यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाल दिया कि अगर हमारा ब्राउजर इस वीडियो को सपोर्ट नहीं करेगा वीडियो टैग को, तो एक मैसेज आ जाएगा कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, अदरवाइज ये हमारा मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो टैग को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ HTML tag, right? So let me execute this program। बहुत ज़्यादा वीडियोस भी हम अपने वेब पेजेस में इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज इट मेक्स आवर वेब पेजेस वेरी स्लो, ठीक है। वो हमारे वेब पेजेस को बहुत स्लो कर देता है बिकॉज वीडियोस गेट्स टाइम्स टू बी अप, वो उसको टाइम लगता है अपलोड होने में, राइट। व्हाट हैपेंड? जस्ट गिव मी a minute। It's not working। Just wait for 1 minute।
Let me execute it once again. Oh, now it will work. थोड़ा स्लो हो गया था. Okay. See, this is the video, right? अब आप देखो वो जो कंट्रोल्स मैंने यूज किया था ना, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया था कंट्रोल्स, तो बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोल ऑप्शन, राइट, आपको ये सारी चीजें दिख रही है. ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये टाइमिंग दिख रहा है, ये स्पीकर दिख रहा है, ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, ये किस चीज का, जिस चीज का भी ऑप्शन हो, तो ये सारा चीज जो अपीयर होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज कंट्रोल. ओके, अगर आप कंट्रोल नहीं लिखोगे तो ये सारी चीजें आपको डिस्प्ले नहीं होंगी. अब यहाँ पे वीडियो को हमें खुद ब खुद प्ले करना पड़ेगा. वी हैव टू प्ले दिस सेटिंग्स, राइट. हमें इस वीडियो को, ठीक है, दिस इज वीडियो विच आई प्रिपेयर्ड फॉर पाइथन स्टूडेंट्स, राइट. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को हमें अब प्ले करना पड़ेगा. दिस वीडियो इज ऑलरेडी, राइट. अब यहाँ पे आप सारे कंट्रोल्स को यूज कर पा रहे हो. ये वीडियो आप देखो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रहा है, आपको इसको प्ले करना पड़ेगा. द मोमेंट आप इसको ओपन कर रहे हो, यू नीड टू प्ले इट. अगर यूजर चाहे तो इस वीडियो को देख भी सकता है, इस वीडियो को नहीं भी देख सकता है, राइट. इट्स अप टू द यूजर, राइट. बट हमारे पास ऑप्शन ऐसे भी है हमारे वेब पेजेस में कि नहीं, हम चाहते हैं कि द मोमेंट हमारा वीडियो ओपन हो वो दिख, मतलब वो अपने आप स्टार्ट भी हो जाए. बिकॉज आई वांट कि हमारा जो यूजर जो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, एटलीस्ट वो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखे. तो अगर आप उसको प्ले का ऑप्शन दे रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि इट इज अप टू द यूजर चॉइस कि वो उसको देख सकता है या उसको नहीं देख सकता है. बट इफ यू आर गिविंग द ऑप्शन ऑफ ऑटो प्ले, राइट, इट मीन्स द मोमेंट दिस वेब पेज भी जैसे आप देखते हो बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं जिनके बैकग्राउंड में जैसे ही आप बहुत सारे वेबसाइट्स को ओपन करोगे तो उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक्स बजते रहते हैं. वो आप उसको प्ले नहीं करते हो, बट दैट इज बीइंग द डिफॉल्ट सेटिंग. वो खुद ब खुद प्ले होते रहते हैं. या फिर आप बहुत सारे, अगर आप जैसे एक देयर इज अ स्टूडियो, म्याऊ स्टूडियो पटना में है, अनुराग सर का है, राइट. तो आप देखो कि उसमें जितने भी वेबसाइट्स हैं जनरली मैट्रिमोनियल्स के बहुत सारे वेब पेजेस बना के रखे हैं, तो सब में कुछ ना कुछ उस थीम से रिलेटेड बैकग्राउंड म्यूजिक्स आर ऑलरेडी देयर. इट मीन्स वो ऑलरेडी उस वेब पेजेस में कोडिंग है कि द मोमेंट दिस वेब पेज विल गेट अपलोडेड ऑन द गूगल, जैसे ही यूजर इस वेब पेजेस को क्लिक करेगा वो बैकग्राउंड म्यूजिक्स ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट प्लेइंग, सो दैट टू गेन द मोर अट्रैक्शन ऑफ द विजिटर्स के अट्रैक्शन को गेन करने के. सी व्हाई वी जनरली क्रिएट अ वेबसाइट, ओके. आपको मैं इन सब चीजों को, आप इसको प्रोफेशनल स्किल की तरह ऐसे समझो कि हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो that is something which we are sharing all the information to the viewers who are visiting our websites. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा सारा इंफॉर्मेशन उसको मिले जिससे में मेरा एडवर्टीजमेंट हो, मेरी मार्केटिंग हो, राइट. तो अगर आप चाहो तो इसमें हमारे पास फीचर आता है खुद ब खुद प्ले का. ऑटो प्ले ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल विच आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट प्रोग्राम. Next program. Okay, so this is the one way, very simple way, my dear student, but you have to be very much particular कि this video must has to be there in the folder where your web pages are there, or if you don't want कि वो आपके उस web page में available है, तो अगर वो किसी और भी फोल्डर में या किसी और लोकेशन पे अवेलेबल है तो यू हैव टू गिव द कंप्लीट यूआरएल, राइट. यू हैव टू गिव द कंप्लीट यूआरएल. वो कंप्लीट यूआरएल आप कहाँ डालोगे, आप यहाँ पे डालोगे कि वो मान लो सपोज ये वीडियो इस फोल्डर में नहीं रहता, ये किसी और फोल्डर में रहता, राइट. तो वहां पे हमें डालना पड़ता जिस ड्राइव के अंदर है, जिस फोल्डर के अंदर है, और व्हाट इज द नेम ऑफ माय वीडियो, राइट. सो दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम in which you can get an idea ki how you are going to add video to your web pages. So I hope participants it is clear to you. Just text me in the chat box. I think it's not visible. Okay, it's maybe visible. Yes. So participants are please send me notifications so that I can get an idea that you have understood the option, this video tag, or you can just raise your hand so that I can ask you to unmute. चैट बॉक्स डिसेबल है सर. सर इसको कर दीजिए एनेबल.
Vishakha, Yes, ma'am. yes, Clear. is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, is it okay? Nikhil? मैम आई हैव अ डाउट। जैसे यहाँ पे योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, जो लिखा हुआ है वो अपने आप ही नहीं आएगा, मतलब इसमें कोई टैग या कुछ यूज नहीं करना होगा, ये खुद ही नहीं आएगा। और वो है अगर ना, ये सपोर्ट नहीं करेगा तो? ये डाला है ना, उसको उसको मैंने वीडियो टैग के अंदर डाला है ना, देखो ना, ये आपका वीडियो अच्छा टैग के अंदर डाला हुआ है ना। अच्छा अच्छा, तो देखो ये यहाँ जो, पे क्लोज किया है। ठीक है, टेक्स्ट अगर समझ वो नहीं गए। सपोर्ट करेगा देन ओनली इट विल बी डिस्प्ले, राइट। वो तभी वर्क करेगा वो मैसेज जब हाँ सपोज वो वही हमारा मैम, हम ब्राउजर समझ गए। सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो आप हाँ इसको देखो हाँ ना, आप ओके। इसको वीडियो टैग के अंदर इंक्लूड किया। अगर वीडियो सपोर्ट कर गया तो फिर दिस मैसेज मेक नो सेंस, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ही नहीं होता। ठीक है, जैसे आप देखो इसको जब यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर रखा है। ये अब क्लियर हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपको चीजें नहीं समझ में आए प्लीज यू स्टॉप मी देयर, बिकॉज अब जो चीज हम लोग सीख रहे हैं वो सारी चीजें अब हमारे प्रोजेक्ट्स में आप इसको इंक्लूड करोगे। एंड आई होप कि आप हर एक टैग, जो जो टैग मैं डिस्कस कर रही हूँ, एटलीस्ट आपके किसी न किसी वेब पेज में, आइदर इन होम पेज और अबाउट अस और गैलरी, बहुत सारे स्टूडेंट कल भी मुझे लेआउट शेयर किए हैं, सो आई हैव अप्रूव्ड देम कि दैट इज ओके, यू कैन गो अहेड विद द डिजाइनिंग पार्ट, राइट। तो आपको सारे टैग्स का किसी न किसी वेब पेजेस में यूज करना है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि यस हाउ दिस वीडियो टैग इज वर्किंग। ओके, सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट प्रोग्राम। वीडियो की क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे? Oh my God. क्वालिटी Prashant, this is a language for web development, right? So इन चीजों को क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए you have to use another software that is for video editing, right? और वैसे ही वीडियो को आप लिंक प्रोवाइड करो। HTML doesn't provide us any concept like क्वालिटी पे हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो एडिटिंग लैंग्वेज नहीं है प्रशांत। दिस लैंग्वेज इज बेसिकली फॉर वेब, राइट। ये वेब पेजेस पे चीजों को कर रहा है। एंड वीडियो की क्वालिटी के लिए वी हैव सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर। आप इतने सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखते हो in these days, every people are creating so many memes, so many reels they are creating, so you can see there are so many small apps available प्रशांत। तो वीडियो क्वालिटी को हम लोग HTML के थ्रू नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है, मैप 1 GB की वीडियो अपलोड हो सकता है, सी आप उसको अपने YouTube पे अपलोड कर दो। आपके कॉलेज का तो पर डे आप देखो, आपको जो वीडियोस 1-1 घंटे से ज्यादा के वीडियोस आपके अपलोड हो रहे हैं YouTube पे, आप YouTube पे अपलोड कर दो, क्योंकि आप ब्राउजर पे अपलोड कर नहीं रहे हो। आप डोंट गेट कंफ्यूज कि ये जो वीडियोस है ये मेरे ब्राउजर पे अपलोड हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखो ना, ये मेरे ब्राउजर पे थोड़ी अपलोड हो रहा है, मैंने तो बस उसका एक लिंक दे दिया है, मैंने बस उसका यहाँ पे उस इमेज का बस नाम दे दिया, उस वीडियो का बस नाम दे दिया है। ठीक है, ये मेरे वेब पेज पे अपलोड नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता कि अगर हमारे ये वेब पेज पे अपलोड होता, तब तो कोई भी ऐसा वेबसाइट अच्छे से वर्क नहीं करता जिसमें वीडियोस रहते, क्योंकि सपोज थोड़ा सा भी नेटवर्क इशू होता तो दैट वेबसाइट में नॉट वर्क। तो आप देखते हो कितने सारे वेबसाइट है, तो कहीं ना कहीं वो सारे वीडियोस हमारे सर्वर पे अपलोड होते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने वेबसाइट जब बना लेते हो तो उस वेबसाइट को हम लोग होस्ट करते हैं। क्या करते हैं? होस्ट करते हैं, क्योंकि वेबसाइट सिर्फ बना के अपने लैपटॉप पे रखोगे तो दैट विल बी नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। so if you want to make your website available to all the users, तो आप उस वेबसाइट को हम लोग क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। देयर आर मेनी होस्टिंग एजेंसी, जैसे आप देखते हो होस्टिंग रजा करके एक और कंपनी है जो कि होस्टिंग प्लान आपको देती है। 1 ईयर का अलग प्लान होता है, अगर आप 5 ईयर्स प्लान लेना चाहते हो तो 5 ईयर्स का वेबसाइट को होस्ट करके वो अपने सर्वर पे रखेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि होस्टिंग जब तक आप अपने वेबसाइट को नहीं करोगे तो वो चीजें आपको दिखेंगी नहीं। और होस्टिंग में जब आप करते हो तो आपसे पूछता है कि आपके वेबसाइट में वीडियोस भी हैं, ये सारी चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है, राइट। और उस स्पेस की कॉस्टिंग क्लाइंट को पे करना होता है, उस स्पेस की कॉस्टिंग क्लाइंट को पे करना होता है। सपोज जैसे आपके कॉलेज ने लिया होगा कि भाई नहीं, मुझे 20 GB स्पेस मंथली चाहिए, राइट, या फिर मुझे 50 GB स्पेस मंथली चाहिए, राइट। तो सर्वर पे उसको उनको उतना स्पेस मिला है ताकि मंथली आप 50 GB तक के कंटेंट को वहां अपलोड कर सकते हैं। तो आप चीजों को लगाना होगा अप डाउन सेंटर,
वीडियो अप डाउन सेंटर जहां भी लगाना होगा वहां पे लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लगा सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करेगा। मान लो ऊपर से आपने कुछ टैग्स का यूज करके लाए हो, जहां पे आपको वीडियो इंक्लूड करना है वहां पे वीडियो टैग लगा दीजिए, इट कैन बी इंक्लूडेड, राइट। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। मुस्तफा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये 1 GB वाला, तो आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये डिस्कस हो रहा है सर्वर साइड पे, तो वो सारे वीडियो सर्वर पे अपलोड होंगे, राइट। और वेब पेजेस पे तो बस हम उसका एक लिंक दे रहे हैं। कहीं भी हमारे वेब पेजेस पे स्पेस की बात ये नहीं कह रहा है कि ये सारे वीडियोस हमारे स्पेस पे अपलोड होंगे, तो इसलिए इट हैज नथिंग टू डू विद द वेब पेजेस ऑप्शन की ये हमारे वेब पेज पे प्रॉपर्ली कैसे अपलोड होगा, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जैसे इसमें मैंने क्या बताया, जब आप इस वीडियो को प्ले करोगे ना, तो ये ऑटो प्ले नहीं हो रहा है, राइट। इसमें आपको उसको प्ले करना पे हो रहा है, तो हो सकता है कि जो एंड यूजर है, जो विजिटर हमारा है, उसको प्ले ना करे, he is least interested in going through my video। उस केस में हम चाहें तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो वेब पेज हमारा विजिट होगा, ऑटोमेटिकली दैट विल बी प्लेड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन यूज कर दिया ऑटो प्ले, यहाँ से कंट्रोल हटा दिया मैंने। आर यू गेटिंग participants? Can you just see the difference in the previous program and the program right now which is on your screen? Can you observe the difference? Yes ma'am. Okay. तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या था, कंट्रोल्स का। तो मतलब वो हमें कंट्रोलिंग ऑप्शन दे रहा था कि हम अपने अकॉर्डिंग वीडियो को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन क्या लगा दिया, ऑटो प्ले। आई हैव यूज्ड द ऑप्शन ऑटो प्ले। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। I don't know why little bit system is very slow this today. What is happening? Just wait. Yes, you have any question? Mustafa, you have any question? Unmute yourself. You are raising your hand. मैम अगर फाइल से वीडियो डिलीट कर लेंगे तो वो वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा? नहीं, वेब पेज पे फिर वो आइकन बस बन के दिखेगा। मतलब वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा? हाँ, नहीं, वेब पेज से डिलीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मे बी थोड़ा सा ये बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू, मे बी वो वीडियो आपको अभी चल नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे इनका क्वेश्चन था कि मैम अगर हम उस फाइल से वीडियो को डिलीट कर दें, जैसे ये चाह रहे हैं कि अगर ये फोल्डर है, इस फोल्डर से हम इस वीडियो को हटा दें, तो आपके वेब पेज पे वो आइकन दिखेगा, क्योंकि आपने तो वेब पेज में तो कोडिंग कर दी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीडियो 11 है, मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, 111 कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। ऐसा तो कोई वीडियो हमारे पास नहीं है, देयर इज नो एनी वीडियोज लाइक 11 MP4 ऑन माई वेब पेज। जब इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, वो आपको नहीं दिख रहा है। आर यू गेटिंग? ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वेब पेज पे कंटेंट नहीं है। वेब पेज पे तो आपने वो टैग्स को लिख ही दिया, बट सिंस दैट इज नॉट विजिबल, वो दिख नहीं रहा, वो है ही नहीं,
that is not available on that destination folder, that's why वो वहां पे कुछ भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अगर वही इस चीज को हम टेबल और टीआरटीडी के अंदर अगर इस वीडियो टैग को यूज किए रहते तो वहां पे एक ब्लैंक स्क्वायर दिखता है, एक टीडी दिखता हमें, जिससे पता चलता है कि दैट इज एम्प्टी, वहां पे कुछ भी नहीं है। राइट, समझ में आया आपको ये? ओके मैम, यस मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मे बी बिकॉज ऑफ slow network or something, this it is not being executed. Okay, let me save it again because अभी मैंने चेंज किया ना कोड। एक बार मैं इसको रन करके दिखाती हूँ कि जैसे ही वेब पेज एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली वो ऑटो प्ले हो जाता है। स्टार्ट होना चाहिए तो इसको। ओके फाइन, मैं इसको एक बार आपको बाद में एक बार रन करके दिखा दूंगी। मे बी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू ये वीडियो मे बी प्ले नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। बट थिंग इज दैट जैसे आपने ऑटो प्ले लगाया तो एटलीस्ट यू कैन सी दैट वो सारे ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे। आप देखोगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस कुछ भी नहीं दिख रहे। जो ऑप्शंस आपको दिख रहे थे पहले वेब पेजेस में, आपको ऑप्शंस दिख रहे थे ना, यहाँ पे आपको वैसा कोई भी ऑप्शंस आपको दिख नहीं रहा। राइट, जब आप इसको रन कर रहे हो तो देयर इज नो प्रोविजन कि आप खुद से प्ले करो या कुछ भी वैसा, ठीक है। वो बस आपको वीडियो दिख रहा है, इसका मतलब वो वीडियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। मे बी मेरे पास और भी दूसरा वीडियो होता तो मैं डाल देती, बट दिस फोल्डर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो माय डियर पार्टिसिपेंट, यू कैन नॉट सी एनी कंट्रोल्स। कैन यू सी एनी कंट्रोल्स हियर? कोई कंट्रोल्स आपको दिख नहीं रहा, बिकॉज आई हैव यूज्ड द ऑप्शन ऑटो प्ले। बिकॉज मैंने कौन सा ऑप्शन यूज कर दिया, ऑटो प्ले। इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये हमारा वेबसाइट जैसे ही ओपन होगा, जिस वेब पेज पे हमारा ये कोडिंग है, द मोमेंट हमारा ये वेब पेज ओपन होगा ऑटोमेटिकली वो वीडियो प्ले हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट बीइंग प्लेड, बट बिफोर दिस आई ट्राइड, इट वाज वर्किंग फाइन। प्लीज रिपीट अगेन मैम। ओके शिवेंद्र पांडे जी, आप बस देख ली। बस मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके पहले का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमारे पास ऑप्शन था कंट्रोल्स का। हम लोग वहाँ पे कंट्रोल्स का ऑप्शन दे रहे थे। राइट, द मोमेंट हम लोग कंट्रोल्स का ऑप्शन दे रहे थे तो यहाँ पे हमें कंट्रोल्स दिख रहे थे, पॉज का, प्ले का, स्टॉप का, फुल स्क्रीन का। बट राइट नाउ मैंने क्या किया कि यहाँ पे उस ऑप्शन को हटा के मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्या डाल दिया, एट्रीब्यूट ऑटो प्ले। मैंने क्या डाल दिया, ऑटो प्ले। इट मीन्स इट विल स्टार्ट द मोमेंट ये हमारा वेब पेज अपलोड होगा, जैसे ही हमारा वेब पेज अपलोड होगा ऑटोमेटिकली वो वीडियोज आपका खुद ब खुद प्ले हो जाएगा, ठीक है। बट अभी वो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे वीडियो बस आ गया है, बट इट्स नॉट बीइंग प्लेड। ये प्ले नहीं हो रहा है, मे बी कुछ इशू होगा नेटवर्क या फिर बिकॉज बिफोर दिस इट वाज प्लेइंग। ओके कोई नहीं, एट द एंड मैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को कोशिश करके एक बार एग्जीक्यूट करके आप दिखा दूंगी। आप भी इसको अपने सिस्टम पे ट्राई करना, होप इट मे स्टार्ट वर्किंग। ओके, so let's move with the next program, P61. So only you have to add only one thing, auto play। कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या यूज करना है, ऑटो प्ले। P61। अब यहाँ पे हमने कर दिया ऑटो प्ले म्यूटेड। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन क्या यूज किया, ऑटो प्ले म्यूटेड। इसका मतलब प्ले तो होगा लेकिन म्यूट रहे। Can you find who is going to answer me that what is the difference between autoplay and autoplay muted? I just want the participant to raise the hand and tell me the difference. What is the yes, Pratikshta, you just want to answer? यस मैम, ऑटो प्ले में ऑडियो के साथ प्ले होगा और म्यूटेड जब लगा देंगे तो फिर म्यूट हो जाएगा, बट सिर्फ वीडियो प्ले होगा। Very good. Anyone else? Yes, Rajneesh, you also want to answer? Rajneesh, you want to answer? What is? Okay, I hope he's unable to. Rajneesh, are you able to listen me? Mustafa, you want to answer this question? What is the difference between? yes ma'am, muted में ऑडियो नहीं रहेगा, साउंड नहीं रहेगा। यस यस राइट, तो थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। ऑटो प्ले अगर रहेगा तो वो वीडियो ऑडियो साथ में प्ले होगा, ठीक है। आप चाहो तो बस वीडियो को प्ले करा सकते हो, यू कैन हैव द साउंड एज म्यूटेड, राइट।
उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? ऑटो प्ले म्यूटेड। कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे? ऑटो प्ले म्यूटेड। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। मे बी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू ना वो आपको वीडियो प्ले नहीं हो रहा, बट हो जाना चाहिए था। मैं देखती हूँ। This is see, it's working. Can you see? You cannot listen any sounds. Is it audible to you? Any sound is audible to you, participants? Are you able to listen any sound, any audio No, inside this no, video? ma'am. This is No, why. ma'am. क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों No, ऐसा हो रहा ma'am. है? क्यों ऐसा हो रहा है? Answer me. Because it is Muted है, ma'am. muted. Because I have used the attribute that is called muted. Auto play is there, but it is muted. Very good, very good. Muted. Auto play mute. Very good. So I hope you are able to understand this concept. What is the meaning of controls? What is the meaning of auto play? What is the meaning of auto play muted and all? Yes, ma'am. Okay, okay. Let's proceed with the next. अब देखिए ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब इसको अभी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए। जैसे अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे ना, कि हमारे वीडियोस में बटन्स नहीं थे। हमारे वीडियोस में क्या नहीं थे? बटन नहीं थे, राइट। जैसे हम चाहें तो बटन्स बना सकते हैं। प्ले पॉज का एक बटन रहेगा, ठीक है। हम अपने उस वीडियो को इनलार्ज भी कर सकते हैं, बिग या स्मॉल या फिर नॉर्मल साइज में भी कर सकते हैं। पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखाती हूँ, ठीक है। आउटपुट दिखा के आई विल कम बैक टू द कोडिंग। ओके, जैसे आप इसको देखो, इसको 62 है। Can you see 4 buttons at the top? Participants, can you see 4 buttons at the top? Yes, small ones. See, play, pause, big, small। देखो बिग पे क्लिक करने पे थोड़ा बिग हो जा रहा है, स्मॉल पे क्लिक करने पे थोड़ा स्मॉल हो जा रहा है। नॉर्मल साइज है, बिग है, स्मॉल है, नॉर्मल है, प्ले है। तो देखो ये प्ले होने लगेगा। फिर मैंने इसको पॉज कर दिया तो ये रुक गया। फिर मैंने किया, इसको प्ले किया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉज कर रहे हैं, राइट। तो आप ये आउटपुट समझ रहे हो पहले, बिकॉज जब आपको आउटपुट समझ में आएगा तभी आपको कोड समझ में आएगा कि हाउ दिस कोड इज वर्किंग। सो आई होप पार्टिसिपेंट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो बहुत सारे बच्चे, मान लो अगर आप प्रोजेक्ट्स में बनाना चाहते हो, आप कोई एक म्यूजिक स्टोर बनाना चाहते हो या फिर मूवीज स्टोर, जिसमें आपके वेबसाइट पे विजिट करके हम ईयर डालें, फिर ईयर से अलग अलग टाइप्स के मूवीज या सॉन्ग्स चीज़ों को सेलेक्ट कर सके यूजर अपने चॉइस का। अभी बहुत सारे प्ले स्कूल्स का देखोगे इस लॉकडाउन में, दे आर यूजिंग मच मोर डिजिटल मीडिया, अपलोडिंग एवरी टाइम राइम्स एंड ऑल। तो उस टाइप के बहुत सारे वेबसाइट्स को आप ये सब टैग्स का यूज करके आप उसको डिजाइन कर सकते हो। अब आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इसके कोड को समझने के लिए, बिकॉज द कोड इज नॉट दैट मच इजी, बिकॉज इट इज समथिंग विच नीड्स कंप्यूटर साउंड लैंग्वेज, बिकॉज अब ये थोड़ी प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। मैं इसको इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन जब हम लोग ऑडियो टैग उतना समझे ही, तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे एफर्ट लगा दे, ठीक है। अगर इसमें कोई ऐसा पार्ट अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप बहुत परेशान नहीं होना, बिकॉज इट इज लिटिल बिट एम्बेडेड कोडिंग, राइट। यहाँ पे अब जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहते हैं वो इसको इजिली समझ जाते हैं, बिकॉज वो C++ बहुत सारे लैंग्वेजेस को पैरेलली पढ़ते रहते हैं बैकग्राउंड में, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम HTML हमने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमारा वेब पेज जो है वो कंट्रोल हो रहा है विद द यूजर इंटरफेरेंस। यूजर के इंटरफेरेंस से हमारा वेब पेज क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो बटन्स है उस पर हम जैसे क्लिक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बटन्स हमारा बिहेव कर रहा है। तो हम इस वेब पेज को कह सकते हैं इट इज अ रिस्पॉन्सिव वेब पेज। कैसा वेब पेज है ये? रिस्पॉन्स ले रहा है, ये रिस्पॉन्सिव वेब पेज हो गया। तो जब भी रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस की बात आती है तो थोड़ा बहुत उसमें हम लोग को कोडिंग्स, आई मीन अपार्ट फ्रॉम HTML टैग, we have to use few codings, that is the coding of JavaScript और PHP, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया था बिगनिंग में कि स्ट्रक्चर बन जाने के बाद
जब हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन या उस पे कुछ और एडिटिंग करने की जरूरत होगी अपने वेब पेजेस पे, तो वी मे टेक हेल्प ऑफ सब अदर लैंग्वेजेस विच आर गुड एट दिस टेक्नोलॉजी, जो इस टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, उसका हम लोग यूज करके कहीं ना कहीं उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो राइट नाउ जैसे अभी तक तो हम लोग सिंपली HTML टैग से ऑडियो वीडियो इंक्लूड कर दिए, बट इफ आई वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ बटन्स, राइट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव द ऑप्शंस। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, एक डिवीजन टैग यूज किया। डिवीजन मीन्स जस्ट लाइक पार्टीशन, जो हम लोग TRTT से यूज करते हैं, तो डिवाइड कर दिया हमने एक सेक्शन को। ठीक है, इसलिए मैंने सेंटर में लिया है। अलाइन कहाँ किया है मैंने, सेंटर में किया है। अब यहाँ पे 4 बटन्स है, 1 2 3 4। तो बटन्स को बनाने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, बटन टैग यूज करते हैं। बटन को बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, बटन टैग यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने बटन टैग का यूज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मीन्स जैसे ही क्लिक करें, आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऑन क्लिक यहाँ पे एक इवेंट है। ऑन क्लिक क्या है, यहाँ पे एक इवेंट। जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे अभी जो मैंने कोडिंग यूज किया है, इट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। कैसा कोडिंग है ये, इवेंट ड्रिवन, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड है। until unless you are not going to click that button, ऐसा कोई इवेंट अकर नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि वो सारे जो बटन्स हैं दैट आर सोर्स ऑफ इवेंट, वो अलग अलग इवेंट के सोर्स हैं। अगर आप उस बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपने एक इवेंट को जनरेट किया। इवेंट इज समथिंग, इट इज एन एक्टिविटी। इवेंट इज एन अकरेंस ऑफ एक्टिविटी। तो वहां पे जैसे ही हम क्लिक करें तो क्लिक इज एन इवेंट। तो मैंने लिखा कि ऑन क्लिक, जैसे ही यूजर यहाँ पे क्लिक करे, दैट इज कॉल्ड विच इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक पहले से बना हुआ फंक्शन वो है हमारे HTML में, दैट इज कॉल्ड प्ले पॉज। क्या है, प्ले पॉज। इसको मैंने नहीं बनाया, और माय डियर स्टूडेंट ये केस सेंसिटिव है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। प्ले पॉज, राइट, ये एक फंक्शन पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, प्ले पॉज। और प्ले पॉज एक फंक्शन है, उस फंक्शन की कोडिंग नीचे मैंने लिखा है। और यहाँ पे जो मैंने प्ले पॉज लिखा है ये बटन पे डिस्प्ले हो रहा है, और ये सिंपली बटन का क्लोजिंग। तो आई होप कि आपको पहला लाइन समझ में आया। माय डियर स्टूडेंट, पहला लाइन आपको समझ में आया या नहीं? डन मैम, क्लिप इज प्लेइंग। ओके, अब प्रीतम सिंह, ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, आप कर पा रहे हो तो ठीक है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आपका क्लिप वर्क कर रहा है, वेरी गुड। बट यहाँ ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं पार्टिसिपेंट? पहला लाइन बस मुझे बताओ, आई एम नॉट कंसर्न विथ अनदर लाइन, बस अभी फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन करने से हमारा क्या होगा, एक बटन बनेगा, उस बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या आएगा, play/pause, इतना ही हमारा काम था। और जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा तो बैकग्राउंड में एक फंक्शन इसके अंदर वर्क कर रहा है, उस फंक्शन को हम लोग बोल रहे हैं प्ले पॉज। ये फंक्शन क्या काम करेगा वो नीचे मैंने कोडिंग लिखा है। इन द सेम वे दूसरा बटन मेक बिग, ये एक फंक्शन है, मेक बिग, बिग बना दे, उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट क्या लिख दिया, बिग। दूसरा मैंने फंक्शन बना दिया मेक स्मॉल, तो वो साइज को क्या कर देगा, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल कर दिया, नॉर्मल कर दिया। इसके बाद मैंने BR टैग लगाया स्पेस देने के लिए। उसके बाद मैंने क्या बनाया है, हमने अपना वीडियो, जो मेरा वीडियो है ना, उसको मैंने एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, उस वीडियो को मैंने एक ID प्रोवाइड कर दिया, वीडियो 1। आप कुछ भी ID डाल सकते थे। ये हम लोग जनरली ID इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि अगर मान लो एक वेब पेज में 4-5 वीडियोज है, तो आप किस इफेक्ट को किस वीडियो पे डालना चाहते हो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, राइट। तो हम लोग उसको एक ID प्रोवाइड कर, जैसे मैंने ID क्या लिख दिया, वीडियो 1। सोर्स में लिख दिया मैंने वीडियो 1, जो हमारे ऑलरेडी इसमें सपोर्टेड है, ये तो वीडियो टैग हो गया। इस डिवीजन को मैंने बंद कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे एक टैग यूज किया, स्क्रिप्ट। तो माय डियर, एक्चुअली दिस इज द कोडिंग पार्ट। एक्चुअली यही हमारा क्या है, कोडिंग पार्ट है। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है। ठीक है, तो जरूरत पड़ेगा तो हम अपने वेब पेजेस में इस छोटे छोटे चीजों को भी इंक्लूड करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा हम नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये पार्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको अपने प्रोजेक्ट में डालो ही, लेकिन व्हेन यू आर लर्निंग दिस, तो दीज आर स्मॉल थिंग्स। तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा माइल्स तो कवर करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने एक नया टैग ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग। इस टैग का हम लोग यूज करते हैं जब हम, मैम ब्राउजर वीडियो क्यों नहीं सपोर्ट करता है,
ब्राउजर मैम, ब्राउजर वीडियो क्यों नहीं सपोर्ट करता है? इट इज द फीचर ऑफ दैट ब्राउजर शिवेंद्र, राइट? बिकॉज हो सकता है, अब जैसे मान लो आप देखते हो ना कि बहुत सारी चीजों, अब अगर आपके पास कोई पुराने जमाने का कैसेट है, आप चाहोगे कि वो हमारे लैपटॉप में प्ले हो जाए, तो नहीं कर रहा, बिकॉज अब लैपटॉप में वो फीचर नहीं है, राइट? तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे नया नया अपग्रेडेशन या ब्राउजर अपडेट होते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे ओल्डर ब्राउजर है वो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर द न्यूअर कंसेप्ट विच हैज़ बिन इंक्लूडेड इन HTML। तो बहुत सारे ब्राउजर जो पहले से बने हुए हैं जिनमें इन सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो नहीं सपोर्ट करेगा। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज वो ब्राउजर का फीचर है, दैट इज अ फीचर ऑफ ब्राउजर। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे मोबाइल में ये चीज नहीं सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज हमारे मोबाइल का वो कॉन्फ़िगरेशन है, वो उस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता है, राइट? तो आई होप मैम मोबाइल से नहीं हो रहा है। तो मोबाइल में MP3 मोबाइल में नहीं हो रहा है, वर्क करेगा, वर्क करेगा। अगेन मोबाइल में इसलिए वर्क करेगा कि मोबाइल भी तो MP3 MP4 को सपोर्ट करता है, मोबाइल का भी जो वीडियोस होता है दैट इज द सेम, तो इट विल डेफिनेटली इट विल वर्क। एक बार शालिनी फिर से ट्राई करो, इट विल वर्क। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल MP3 या MP4 को सपोर्ट नहीं करता, जो भी हमारे पास गाना हम लोग सुनते हैं दैट इज व्हाट परहैप्स MP3 MP4 ही होता है ना। तो अगर वो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है मोबाइल, तो हमारे किसी भी सॉन्ग्स या किसी चीज को भी सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट। तो थोड़ा सा मुझे कोडिंग करना पड़ा, जावा स्क्रिप्ट का यूज इसलिए करना पड़ा बिकॉज हमें उस बटन्स पे इफेक्ट्स चाहिए था कि बटन पे क्लिक करने से कुछ काम हो, राइट? तो जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया माई वीडियो, जिसमें मैंने उस एलिमेंट का आईडी ले लिया, गेट एलिमेंट आईडी वीडियो 1 मैंने ऊपर में आईडी दिया था, ठीक है। इस चीज को आप अगर बहुत आपको डिफिकल्ट, बस इसको आप कॉपी पेस्ट करना, बस आपको इतना ही समझना कि इसमें मैंने वो कोडिंग लिखा है, वो बटन्स कैसे बिहेव करेगा। यहाँ तक जो स्क्रिप्ट का पार्ट है हमारा, जहाँ पे मैंने इस स्क्रिप्ट को क्लोज किया, इट इज समथिंग कोडिंग कि कैसा वो बटन हमारा बिहेव करेगा। यहाँ पे एक फंक्शन है प्ले पॉज, ऊपर में मैंने यूज किया ना प्ले पॉज। ये क्या करेगा, इफ माई वीडियो इज पॉज, अगर वीडियो पॉज है तो उसको क्या कर देगा, प्ले कर देगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, पॉज कर देगा। प्ले है तो पॉज कर देगा, पॉज है तो प्ले कर देगा। तो ये मैंने कोडिंग लिख दिया है। इसी कोडिंग से वो हमारा बटन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन मेक बिग, तो माई वीडियो डॉट विद, विद को मैंने कितना कर दिया 560, ठीक है। मेक स्मॉल, मैंने उसके विद को क्या कर दिया 320। मान लो नॉर्मल विद मैंने रखा है 420, उसके बाद मैंने इस स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, राइट? और 3 पार्टिसिपेंट्स आर रेजिंग द हैंड। यस प्रतिष्ठा बोलो, रजनीश बोलिए, मैम मुस्तफा मत बोलिए। हाँ हाँ मैम, बिग और स्मॉल को एक में यूज नहीं कर सकते क्या? उसको ये जैसे प्ले एंड पॉज को यूज किए हैं, तो बिग स्मॉल कैसे कर सकते हो? तो फिर आपको, क्योंकि बिग स्मॉल में आप कोई पैरामीटर नहीं डाले ना कि हम बिग के लिए क्या, जैसे प्ले पॉज इसलिए हो गया कि वो सेम हमारा बटन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर पॉज है तो प्ले कर दो, क्योंकि प्ले एक अलग फंक्शन है और पॉज एक अलग फंक्शन है, राइट? यहाँ पे तो हम उसके साइज को बढ़ा रहे हैं ना, तो विद तो एक एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम एक साथ नहीं कर सकते, इसको हम एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको हम कॉल कर ले कि इफ माई वीडियो इज स्मॉल या इज बिग। ऐसा कोई फंक्शन अगर जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइंड रहता तो हम इसको यूज कर सकते थे, बट दैट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, पॉज नाम का फंक्शन डिफाइन है, प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन है, पॉज डिफाइन है, इसलिए इसको यूज करना इजी हो गया। लेकिन विद इज नॉट अ फंक्शन। आप देखो ना, पॉज के बाद हमने ये पेरेंथेसिस लगाया है, प्ले के बाद पेरेंथेसिस लगा, दिस पेरेंथेसिस इज अ सिंबल ऑफ फंक्शन। लेकिन आप देखो विद के बाद, विद इज सिंपली एट्रीब्यूट, राइट? तो हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है जिसको हम लोग, अगर फंक्शन रहता कि इफ साइज इज बिग इतना तो मेक इट स्मॉल, अगर ऐसा कुछ रहता तो हम लोग इफ एल्स का यूज कर लेते, बट सिंस देयर इज नो सच प्रोविजन तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ा। मेक बिग जो विद को इतना कर दिया, मेक स्मॉल जो इतना कर दिया, मेक नॉर्मल जो इतना कर, उसके बाद इस स्क्रिप्ट को हम लोग बंद कर दिए। तो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, ये जो कोडिंग है ये थोड़ा कंप्यूटर साइंस का कोडिंग यहाँ पे एम्बेड हो गया, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको यूज करो आप नहीं यूज करो, तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है,
ठीक है, आपको उसका हर एक चीज एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिकॉज चीजें अभी ये हैं कि अभी सिंस आप उतने डेप्थ में स्क्रिप्ट को नहीं जानते, मैंने बस थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे यूज किया है। मुझे जरूरत लगा कि अगर हम ऑडियो वीडियो अपने ब्राउजर में लगा रहे हैं तो व्हाई नॉट वी शुड गिव ऑप्शंस लाइक बटन्स आल्सो, राइट। तो आप फॉर द टाइम भी करता है मैम, क्या करता है शिविर, मोबाइल से वर्क करता है, ओके ओके मैम, ठीक है। तो अगर इफ यू आर गेटिंग दीज थिंग्स देन इट इज वेरी गुड इफ यू आर एबल टू डू दैट, ओके। यस निखिल, यू रेज द हैंड। यस निखिल बोलिए। मैम एक तो है कि ये जो प्ले एंड पॉज जो है ये तो हमारा फंक्शन है ना, हाँ हाँ, और मेक बिग, मेक स्मॉल, मेक नॉर्मल ये भी फंक्शन है। नहीं तो ये यहाँ जो हम देखो नहीं, फंक्शन तो ये है जो प्ले पॉज मैंने नाम दिया, मेक बिग नाम दिया, बट यहाँ पे जो मैंने कॉल किया है माई वीडियो डॉट प्ले, ये प्ले भी एक फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइन है। प्ले एंड पॉज ये दो फंक्शन पहले से डिफाइन है। ये तो मैंने अपना नाम दे दिया, हम यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते थे, प्ले पॉज की जगह पे कुछ और नाम दे देते, यहाँ पे कुछ और नाम यूज कर देते। लेकिन यहाँ पे जो ये मैं कह रही हूँ ये प्ले फंक्शन और पॉज फंक्शन, ठीक है, कि माई वीडियो डॉट प्ले, तो ये प्ले फंक्शन पहले से जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है, पॉज फंक्शन जावास्क्रिप्ट में पहले से इनबिल्ट है। तो दैट्स व्हाई हम लोग एक बटन पे इस दोनों को कंट्रोल कर पाए। आर यू गेटिंग निखिल? Okay, ma'am. One more thing, ma'am, कि we already have option like when we had autoplay, that time we Yes. were also to control the video. So why will go for some complex thing like this? See, I'm telling, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप एक डेवलपर साइड कंसेप्ट पे जाओगे, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो कंट्रोल्स भी है, मीडिया प्लेयर का फिक्स कंट्रोल है, मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकती, उसका स्क्रीन का साइज जैसा होगा, जैसा वो अपीयरेंस आ रहा है वैसा आ रहा है। यहाँ पे यूजर के पास ऑप्शन है कि वो अपने अपीयरेंस को भी चेंज कर सकता है। जैसे मैंने बटन्स डाल दिया, थोड़ा लुक एंड फील हमारा चेंज हो गया, तो मैंने कहा ना, इट्स अप टू द क्लाइंट, इट्स अप टू द प्रोग्रामर, इट्स अप टू द डेवलपर। I have given you multiple options, you can go ahead with any option, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मैं अपने इसको और फ्रेंडली बनाऊं, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐप किड्स के लिए बना रहे हैं, तो किड्स तो इतने स्मार्ट नहीं होंगे कि साथ, तो हो सकता है उनको हम लोग हर एक बटन्स दे, फॉर पिक्चर क्लिक हियर, फॉर जूम क्लिक हियर। अगर वैसा कुछ हमें वेबसाइट अगर बनाना है, तो अगर हमें जरूरत पड़ रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि नो आई डोंट वांट टू यूज ऑटो प्ले फीचर, आई वांट टू हैव सेपरेट ऑप्शन फॉर दिस, ओके देन वी कैन गो अहेड विद दिस, ओके। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमें ऐसा ही करना है, राइट, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारा, क्योंकि आप अगर एज अ डेवलपर या एज अ डिजाइनर आप काम कर रहे हो, तो यू आर वर्किंग on the parameters or on the expectation of client कि what client is doing। जैसे client कहता है कि हम वो 3-4 सैंपल वेबसाइट हमें दिखाता है कि हमें ऐसा लुक एंड फील चाहिए, ओके, हम उसको दे दिए, उसके बाद उसका दिल करता है कि नहीं हमें यहाँ पे ऐसा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना कि वेयर आर द एरियाज की जहाँ पे हम चेंज करेंगे तो हम अपने लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। अगर एज अ नॉर्मल डेवलपर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग नहीं आती, तो भी मैं अपने वेबसाइट पे तो फीचर्स को लगा ही सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्स। इफ आई एम गुड एट जावास्क्रिप्ट मैं इसको इम्बेड भी कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों पार्ट आपको बता दिया। आप चाहो तो नॉर्मल आपके पास कंट्रोल ऑप्शन था, उससे भी आप चीजों को सारी चीजों को कंट्रोल ही कर सकते थे। तो दैट वाज इनसाइड द वीडियोस के अंदर ही वो सारे ऑप्शंस है, दैट इज द डिफॉल्ट फीचर ऑफ वीडियो टैग। बट इफ यू वांट टू हैव अ डिफरेंट लुक लाइक बटन्स में भी आपको सर्कल बटन्स चाहिए या बहुत सारे डिफरेंट कलरफुल ऑप्शंस चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर अलग अलग स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। So for that style you cannot only go with the control feature because control will only give the default option जो उसमें पहले से पैरामीटर बने हुए हैं। अगर आपको उसको एडिटिंग करना है, थोड़ा और उसको ब्यूटीफाई करना है, तो आपको थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग का यूज करना पड़ेगा। I hope Nikhil this part is clear. Very good question raised by Nikhil. Nikhil, I hope this is clear to you. Okay, fine. Okay. So तो ये छोटा सा बस कोड था। फिर लास्ट में तो मैंने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर HTML। इससे आपको एक ये भी चीज समझ में आ गया कि HTML ही सारे का फाउंडेशन है, क्योंकि आप देखो जो भी चीज मैं एम्बेड कर रही हूँ
that is being embedded inside which tag? Body tag. Whatever things I am embedding, that is being embedded inside body tag. इससे ये आपका क्लियर हो गया कि HTML forms the foundation. HTML makes the foundation, और उसके अंदर ही हम लोग जो भी स्क्रिप्ट, जो भी चीजों को यूज करना चाहते हैं, PHP को यूज करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू ऐड मोर different designs to our websites. So everything will be included inside this body tag only. Okay, so I hope this part is clear. Once again, I'm showing you the output so that now it will be more clear to you. Normal, right? So now it is, अब आपको समझ में आ रहा है, ऑन क्लिक, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे कोई फीचर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज मैंने कोडिंग में क्या लिखा है, ऑन क्लिक. अगर वो क्लिक होता है देन ओनली ये सारे फंक्शन हमारे कॉल होंगे एंड इट विल शो देयर वर्क. Until unless you are not going to click these options, nothing will work. Your web page will simply contain your video. Is that clear? So participants, I hope this is clear to you. Yes, reply in the chat box. Is that clear? This part is clear? Okay. Now let's move ahead. Come to the next. Okay, fine. तो कंट्रोल्स के बारे में मैंने बताया था. जैसे यहाँ पे क्या, ऑडियो. ओके, फाइन. Now this is all about the audio tag. If you want to add only audio to your web page, अगर आपको अपने वेब पेज सिर्फ ऑडियो इंक्लूड करना है तो सेम कंसेप्ट इज देयर. ऑडियो कंट्रोल सोर्स में मैंने डाल दिया, बट लेट मी चेक. ऑडियो इज ऑडियो वन. लेट मी मेक इट ऑडियो वन. ऑडियो वन इज उसके बाद फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, और फिर मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया. तो ये सिंपली आपका बस ऑडियो और वो सारे कंट्रोल्स आपको उस पर दिखेंगे जिससे आप उसको रोक सकते हो. Can you see this? It's not being played. Maybe that audio is not supporting. Maybe that audio, because this audio I have downloaded it from Google right now, but it is of MP3 file. Okay, it is not supporting. Okay, I will download another one. जैसे नाम तो सही दिया ना, audio 1.mp3. Now it's working. Can you listen? My dear participants, was that audio audible to you? My dear, no. Play again. It No, has ma'am. stopped. Okay. Just wait, ma'am. Is it audible now? Because it is audible to me. Is it audible to you?
maybe because of this Zoom feature or something like that, because वो हमारे मेरे system पे वो play हो रहा है ना, maybe because of that. Let me just check my speaker. मैं इसका एक बार sound एक increase करके देख लेती हूँ. Maybe हो सकता है अगर हम Zoom पे कर रहे हैं तो it is 100% जाना चाहिए आपको. I'm getting a message of internet unstable. Maybe because of some network issue, or maybe अगर ये since I'm sharing the screen and that audio is available on my system, because वो हमारे system पे available है ना, उसका तो जो location है वो तो मेरा system है. Okay, so this can be one reason. If we know, then only we can distinguish what kind of sound it is. Some wavy sound है, waves की तरह sound है, कुछ wind strong wind blow कर रहा है, उसकी तरह ये sound है. Because this it is being played, I can listen to that audio. Okay, maybe because of since that audio is residing on my system, it's not is there, so maybe it आपको वो visible नहीं हो रहा है because I shared the screen. This can be one reason. अदरवाइज कोई टेक्निकल रीजन यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो सिंपल है, आपको सिर्फ वो ऑडियो को अपने फोल्डर में रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने रखा है. ठीक है, और ये इजिली वर्क कर रहा है. राइट, आप देखो यहाँ पे, आप इससे देख लो ना कि ये वर्क कर रहा है. इसका टाइमर, यहाँ पे टाइमर इंक्रीज हो रहा था ना, उससे आप चेक कर लो कि इट इज वर्किंग. राइट, यहाँ पे टाइमर देखो, जब इसको प्ले कर रहे हैं तो इट इज वर्किंग. 0102 ये बढ़ रहा है, और ये 16 सेकेंड्स का है, तो इट विल गो टू 16 सेकेंड्स. राइट, सो इट इज वर्किंग. सो सिंपली आपको बस क्या लगाना है, उसको ऑडियो टैग को बस आपको क्या करना है, यूज करना है. और फिर यहाँ पे हमने कंट्रोल्स डाला जिसकी वजह से वो सारे सिंबल्स दिख रहे हैं. आप चाहो तो सेम फीचर जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ऑटो भी कर सकते हो, ऑटो प्ले भी कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसे आपने वीडियोस में किया था. राइट, तो द सेम फीचर इज अवेलेबल फॉर योर ऑडियो टैग ऑल्सो. ऑटो प्ले कर दोगे, ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा. मैम अगर हम ऑडियो का डायरेक्ट लिंक गूगल से दे दो तो क्या वो प्ले होगा? गूगल मतलब आप कोई लिंक कह रहे हो ना जो कि कहीं और पे है, वो हम बताएंगे आगे जब हम यूट्यूब लिंक्स पे आएंगे ना, तो मैं उस चीज को बताऊंगी. मैम ऑडियो एक्सटेंशन दोनों यूज कर रहे हैं आप. बहुत सारे जैसे आज के डेट में हमारे पास अलग अलग भी एक्सटेंशन के आ गए हैं. राइट, तो दैट इज बोथ कैन बी यूज्ड. राइट, आप दोनों का यूज कर सकते हो. जैसे OGG इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियोज. राइट, बहुत सारे ऑडियोज का ये अलग अलग एक्सटेंशन है. दिस इज न्यू टू HTML5 में ये नया है, अदरवाइज इट वाज सपोर्टिंग ओनली MP3. बिफोर दिस ये MP3 को ही सपोर्ट कर रहा था, but now it has started supporting OGG also. Right, so अगर आप यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन देते हो, ठीक है, 1 मिनट, अगेन आई थिंक वो आपको दिखेगा नहीं, और ये थोड़ा प्रॉपरली समटाइम्स इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. मे बी सम maybe जो मेरा ऑडियो है that is not supporting because it could have started together. maybe ये आपको वैसे भी सुनाई नहीं देगा because it is being played on my laptop. जब आप इसको अपने सिस्टम पे ट्राई करोगे it will work. okay, it will work. let me show you another program. सेम फिर यहाँ पे ऑटो प्ले म्यूटेड भी होगा हमारा नेक्स्ट. ओके, अगर आपके पास MP3 नहीं है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो. अगर आपके पास MP3 का नहीं है तो कोई भी अगर है आपके पास, आप उसको किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो. आता है बहुत सारे कन्वर्टर जिसके हेल्प से आप चाहो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ पे हमने ऑटो प्ले यूज किया. लेट मी शो यू अनदर प्रोग्राम. इसमें वही ऑटो प्ले म्यूटेड है. राइट, सो दिस इज बेसिकली हम लोग यूज करेंगे वीडियो के लिए, क्योंकि म्यूटेड ही रहेगा तो ऑडियो मेक नो सेंस, फिर तो वो हमें दिखेगा ही नहीं. दैट में
नो सेंस, राइट। तो जब भी आपका ऑटो प्ले म्यूटेड रखने का कोई आपका सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए इस ऑप्शन को आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज करते, इसको हम लोग वीडियोस में यूज करेंगे, देन इट विल शो द इफेक्ट, तो हमको प्रॉपर्ली उसका इफेक्ट दिखेगा भी। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? बिकॉज आई एम गेटिंग एंड मैसेज ऑफ नेटवर्क अनस्टेबल। नहीं, आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है, हाँ आ रही है। ओके 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 ओके, maybe I'm having some weak network today because I'm getting a message of unstable. Now see, this is how you can link YouTube. Sir, suppose if you have any videos on YouTube, अगर कोई वीडियो आपका YouTube पे है, तो अगर आप उसको, तो इस केस में क्या होगा कि ये आपके पेज को रीडायरेक्ट वहाँ नहीं करेगा, बस आपकी सोर्स पे उस, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग URL दे रहे थे AN कॉलेज का, तो हम लोग उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं। Are you getting? There are difference between redirect to that page, उस पेज पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट होना और बस उसके कंटेंट को यहाँ पे ले आना। These two things are very different. ओके, जैसे मैंने URL दिया AN कॉलेज पटना, तो हम लोग डायरेक्टली अपने वेब पेज से उसके वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते। बट हियर इफ आई एम गिविंग दिस यूट्यूब लिंक, एक बार मुझे एग्जीक्यूट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ हाउ इट इज वर्किंग, बिकॉज मे बी यूट्यूब से लिंक है, वर्क तो करेगा। 66 थोड़ा स्लो ये वर्क कर रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ स्क्रीन एंड इंटरनेट कनेक्टेड, अदरवाइज इट कुड हैव वर्क प्रॉपर्ली। देखो थोड़ा स्लो। आप YouTube पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हुए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपका कोई YouTube वाला पेज नहीं खुला ना, बस वो उसका कंटेंट, बस यहाँ पे वो वीडियो का जो लिंक मैंने डाला, बस वो कंटेंट, अब यहाँ से उसको नॉर्मली आप प्ले कर सकते हो, जो भी चीजें इसकी थी वो फीचर्स को आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। दिस इज ऑडिबल, द साउंड इज ऑडिबल? नो, साउंड इज नॉट ऑडिबल। ओके, इट मीन्स दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज ये हमारे सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, राइट, एंड वो बिकॉज आप अपने अपने डिवाइस पे कनेक्टेड हो, दिस इज द मेन रीजन कि वो आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है। जब आप उसको अपने सिस्टम पे करोगे तो इट विल वर्क। ओके, ये होस्ट नहीं है चीजें, ये तो बस एक लोकल सर्वर पे हमारे थ्रू ये वेब पेजेस एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस इज द मेन रीजन कि यू आर अनेबल टू सी द you are unable to listen the song music, right? But video can you see? That is, you can see video, you can see वीडियो, तो आपको चलता हुआ वीडियो तो दिख रहा है ना। ओके, आई गॉट द प्रॉब्लम, बिकॉज मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो ये तो हमारे लोकल सर्वर पे, मतलब मेरे सिस्टम पे सारी चीजें हो रही हैं और आपका डिवाइस अलग, दैट्स व्हाई बस आपको मेरे स्क्रीन की एक्टिविटी दिख रही है। ओके, यू आर ओनली एबल टू सी द स्क्रीन एक्टिविटी, यू आर अनेबल टू लिसन इट, गॉट इट? So it is not that any coding problem, ये कोड का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आप इसको अपने डिवाइस पे करोगे ना, इट विल वर्क। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इज द मेन रीजन आई गॉट इट, बिकॉज हम अभी अपने सिस्टम पे चीजों को कर रहे हैं, तो आप उसको चीजों को नहीं देख पा रहे, और देयर इज नो एनी अदर रीजन, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली यूट्यूब का लिंक्स भी आप अपने, जैसे मान लो हमारे पास बहुत से, जैसे मान लो आपके कॉलेज का ही यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे लिंक्स, अगर आप अपने वेब पेजेस में कुछ आपके प्रिंसिपल का मैसेज है या कुछ है, आप चाहते हो कि जैसे ही कोई विजिटर इस पे आए तो उसको वो चीज दिखाई दे, वो उस पर क्लिक करे, तो आप किसी यूट्यूब लिंक्स को भी यहाँ पे डाल सकते हो। यूट्यूब लिंक्स को डालने के लिए आप देखो यहाँ पे मैंने एक टैग यूज किया, आई फ्रेम। क्या मैंने यूज किया है? आई फ्रेम। जनरली यूट्यूब को डायरेक्टली ऑडियो या वीडियो टैग से हम लोग नहीं डाल सकते, उसके लिए हम लोग एक फ्रेमिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेम, आई फ्रेम, क्योंकि हम अपने वेब पेज में एक अनदर विंडो क्रिएट किए, दैट इज कॉल्ड आई फ्रेम, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेम, राइट। उस इंटरनल का हमने विड्थ एंड हाइट स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे उस इंटरनल फ्रेम का विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एसआरसी टैग से मैंने उस लिंक का सोर्स दे दिया कि वो सोर्स का लिंक क्या है, ये मैंने डाल दिया। माय डियर स्टूडेंट, डोंट गेट कंफ्यूज कि आप ऑडियो वीडियो टैग यहाँ पे यूज कर देना,
मैम वीडियो में सब टाइटल लगाना हो तो कैसे करेंगे? आई हैव द ऑप्शन, सिंपली आप टाइटल का यूज कर दो, दैट इज द एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट। जैसे इमेजेस में यूज किया था ना टाइटल, इमेजेस में यूज किया था ना टाइटल, टाइटल दिस इज न्यू बिल्डिंग, आप यूज कर दो। ओके तो यहाँ पे हम लोग आई फ्रेम का यूज करते हैं। सो आप इसको ध्यान में रखना, जब भी आपको यूट्यूब लिंक्स को इंक्लूड करना है अपने वेब पेजेस में, तो यू आर सपोज टू यूज आई फ्रेम along with height and width, जो भी आपको हाइट विथ डालना है। एंड SRC इज द कॉमन एट्रीब्यूट जो सब जगह यूज हो रहा है। SRC इज द वेरी कॉमन एट्रीब्यूट, दैट इज फॉर सोर्स। व्हाट इज द सोर्स? वो सोर्स आपका क्या है, राइट? तो वो सोर्स मैंने दे दिया। अब ये लिंक आप कैसे कॉपी करोगे, मैंने आपको बताया है। आप जो भी यूट्यूब पे जाना है, आप यूट्यूब पे चले जाओ, जो भी वीडियो का है वहां पे आपका शेयर कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, उसको कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके डायरेक्टली पेस्ट कर दो। कभी भी गलती टाइप करने की मत करना, बिकॉज टाइपिंग में हो सकता है आप किसी URL को गलत कर दो, आप ये कॉमा भूल जाओ, ये कोलन भूल जाओ, हो सकता है इम्बेड के स्पेलिंग गलत कर दो, ये जो यूट्यूब का ये जो लिंक का ऑप्शन आता है ये गड़बड़ कर दो, छोटा बड़ा कुछ भी ऐसा कर दो। तो जनरली जब हम लोग लिंक पेस्ट करते हैं तो वी शुड नेवर कमिट मिस्टेक लाइक वी आर टाइपिंग द लिंक्स को कभी टाइप नहीं करना, डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। Student participants, this part is clear. iframe SRC में क्या हम इमेज लिंक क्वेश्चन एक मिनट कहाँ चला गया, फर्स्ट लिंक को भी दे सकते हैं डायरेक्ट शो करने के लिए अगर वो इमेज हमारे फोल्डर में ना हो तो। बिल्कुल, ये तो हम लोग कर ही सकते थे, तो कर ही रहे थे हम लोग, ये तो मैंने बताया ही था आपको। देन मैम व्हाट इज ए टैग और href? मैम व्हाट इफ ए टैग और href? दैट इज एंकर टैग ना, तो दैट इज यूज फॉर इमेजेस एंड ऑल। हम लोग वीडियो और उसको इंक्लूड वहां पे नहीं कर सकते, राइट? ओके ओके फाइन, ओके क्लियर, ओके ओके। यस निखिल, you are raising your hand. Yes, unmute yourself, Nikhil. Ma'am, like no, in href the website. No, if we click on that link, the website will open. So similarly, we can do it here also because YouTube will also have no URL, and we can use Nikhil, I would like to stop you here. URL डाल दोगे तो you will redirect to that page. Are you getting? मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला ना कि there is a difference between redirect and using a part of it. अगर आप यहाँ पे URL डाल दोगे तो आप तो डायरेक्टली उस YouTube के पेज पे चले गए ना, वहां से तो आप मल्टीपल वीडियोस खोज सकते हो। जैसे हम AN कॉलेज का URL डाल रहे थे तो हम लोग अपने वेब पेज से रीडायरेक्ट कहाँ हो जा रहे थे? उसके वेबसाइट पे। तो अगर आप यहाँ पे YouTube का URL डाल दोगे तो आप एक पर्टिकुलर इस वीडियो पे कंसर्न्ड नहीं होगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द यूट्यूब्स वेबसाइट, राइट? अब वहां से बाकी चीजों को फिर आप एक यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब पे चीजों को करते हो। सो आई होप आई एम क्लियर। निखिल, अब ऐसा ओके बोलोगे तो फिर लग रहा है कि आप जबरदस्ती बोल रहे हो। No ma'am, no, it is clear. No, every video has no its own URL. So I thought no, if we use that like तो आप उस पे करोगे ना, उस URL को यूज कर दोगे ना, तो वो आपको उस वेब पेज पे रीडायरेक्ट करके वहां वीडियो पे ले जाएगा। और यहाँ पे तो हमें कहीं हम YouTube पे रीडायरेक्ट तो नहीं हो रहे, बस हमें वो वीडियो मेरे ही हाइट विड्थ के अंदर दिख रहा है ना। So this is the major difference between. Now I got okay it. this okay fine, thank you. Okay, yes ma'am, all clear. Okay fine, so let's move to the next. Perhaps देखते हैं next क्या है इसके according to 67. What is that? It was same. अब यहाँ पे भी हमने दो ऑप्शन यूज किया, आप एक बार देखो, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूँ बिकॉज ये स्क्रीन के इधर चला था। देखो यहाँ पे दो चीज है, ऑटो प्ले 1, म्यूट 1, ठीक है? जैसे वहां पे हम लोग यूज करते थे ऑटो प्ले म्यूटेड, वहां पे वैसा फीचर यूज करते थे। बट जब हम यूट्यूब की चीजों को कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अपने लिंक के बाद, जहाँ पे हमारा लिंक एंड होता है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट ऑटो प्ले की वैल्यू 0 होती है, म्यूट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब वो खुद ब खुद प्ले नहीं होता, खुद ब खुद वो म्यूट नहीं होता, ठीक है?
अगर आप इस फीचर में ऑटो प्ले 1 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो प्ले होने लगेगा विथ म्यूटेड, राइट। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। वहां पे हम लोग यूज करते थे उसको एज एन एट्रीब्यूट, बट आई फ्रेम के अंदर वो एट्रीब्यूट्स में यूज नहीं हो रहा। जहां पे हम लिंक लगा रहे हैं यूट्यूब का, जस्ट जहां पे हमारा लिंक एंड कर रहा है उसके बाद हम ये फीचर्स को लगाते हैं ऑटो प्ले। ये with this proper symbol, my dear participants, you have to be very much attentive about this symbol, and this is the special symbols used for YouTube's. Okay, let me execute this. एक मैं पहले आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, देन आपको ये क्लियर होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो ये अब खुद ब खुद प्ले होने लगा ना, उसको मैंने प्ले नहीं किया, ये खुद ब खुद प्ले हो रहा है और ये म्यूटेड है। आप यहाँ पे देखो ये म्यूटेड है, दिस इज म्यूटेड, दिस इज बिकॉज मैंने यहाँ पे जो फीचर यूज किए हैं। मैम ऑटो प्ले का वैल्यू 0 क्यों होता है मैम? Of this I have to ask with this HTML tags designer कि why they have made it, because that is the default setting. Okay, उसके default settings में वो चीजों को डाल दिया है, that's why it is 0. Okay, हम लोग चाहें तो हम उसको 1 भी कर सकते हैं। वो आपको फीचर दे रहा है कि आप उसको अपने साइड से 1 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो आपका 0 रहता है, राइट। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो प्ले नहीं हो रहा है ना, आप उसको उसके कंट्रोल से आप उसको प्ले कर रहे हो, आप उसके कंट्रोल से उसको प्ले करते हो। अगर जैसे आप ऑडियो वीडियो में हम लोग लिखते थे ना, एट्रीब्यूट्स यूज करते थे, ऑटो प्ले म्यूटेड, बट जब हम यूट्यूब लिंक्स को यूज करें देयर इज नो सच एट्रीब्यूट्स लाइक दैट फॉर आई फ्रेम। तो यूट्यूब की अगर वीडियोस को हमें ऑटो प्ले या म्यूट करना है तो जब हम उसके लिंक को लिखते हैं तो लिंक के बगल में ही इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग यूज करेंगे। Okay, so I hope this part is clear, participants. Auto play का value, okay, fine. So मैम आज इतना ही रखते हैं। Okay.